یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ذکر صبح کی بیلنس ہے ہماری، اس واسطے چھوٹی کر لیں گے، ابھی کوئی آنے والے لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا وکیل، 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 استغفر وکیل کے پاس ہی جا کر استغفرک یا وکیل، برابر وکیل کا استغفرک یا وکیل، استغفرک یا وکیل، اللہ وکیل، عربی کیا ہوا اللہ وکیل، اللہ وکیل، تو اللہ کے نام وکیل، استغفرک یا 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 وکیل۔ حسین پھوپھی ہیں یہ لنک بھیجو، لنک بھیجو کر استغفرک یا وکیل، استغفرک یا وکیل، اور ایک استغفرک یا وکیل، 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 هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار الخلاق الرحمن الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدر المعین
المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
اللہ یا 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 وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل 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 وکیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے وکیل. وہ لفظ نام دوسرے زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں، تمل میں، فارسی میں. آج حکومت میں وکیل کے پاس گئے، وکیل سے مل کر آئے تو کون ہے وہ، کیا کام ہے وہ، کیا کرتا ہے وہ وکیل؟ ہمارا کام بناتا ہے. اس واسطے وکیل کا معنی کیا ہے؟ کارساز، ہمارا کام پورا کرنے والا. یعنی جس کے بھروسے ہمیں ہمارا کام دیتے ہیں وہ ہمارا کام پورا کرتا ہے، اس پر ہم ٹیکہ کرتے ہیں. تو جس پر ٹیکہ کرتے ہیں، جس پر ہم ٹیکہ لیتے ہیں، اس کو وکیل بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں سب سے بڑا ٹیکہ میں ہوں، میرے اوپر جو ٹیکہ لیں گا تو میں کارساز ہوں، تیرا کام بنانے والا. اگر صبح میں کوئی بھی یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو پڑھ کر ورد کر کے نکلے تو جس کام کے لیے جائیں گا وہ کام بنانے والا وہی وکیل. کیا کرتا ہے وہ وکیل؟ کام بناتا ہے جس کا ٹیکہ لیتے ہیں. تو دنیا کے کاموں کو بنانے کے واسطے ہمیں دنیا کے کسی بھی ایک بندے کو ہمارا وکیل بناتے ہیں، بنا کر ہمارا کام کر لیتے ہیں. RTO میں گئے تو وہاں ایک باہر کا کسی کو اسے لے کر کے انہیں ہمارا کام بنا دیں. کورٹ کو گئے تو وہاں کسی کو ہمارا کام بنا. اچھی طرح غور سے سنیں، ایک بات ابھی آگے آئی. تو کیا ہے، وہ جو ہمارا کام بنانے والا ہے وہ بھی ہمارے جیسا ایک بندہ ہے، اور وہ مسلم بھی ہو سکتا، غیر مسلم بھی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا. ہمارا دوست بھی ہو سکتا، ہمارا دشمن بھی ہو سکتا، ہمارا مخالف بھی ہو سکتا، کیسا بھی ہو سکتا. ہمیں اس پر ٹیکہ لے کر ہمیں سمجھ کر کے انہیں کیا کریں گا، ہمارا کام بنا دیں گا. کارساز، کام بنانے والا. کارساز فارسی میں کیا مانے؟ کام بنانے والا. کیا کام؟ ہمارا کوئی حاجت ہے. اللہ کام بنانے والا
अगर अल्लाह है तो हमको अल्लाह की पहचानने के बाद अल्लाह को पकड़कर उसे हमारा कारसाज बना लेंगे। नाम तो है, हम जानते हैं कि अल्लाह ही कारसाज है हमारा। तो क्या करते हैं, जिसे हम बनाते तो वो कौन होता काम बनाने वाला, अंदर काम कराने वाला जो होता उसका वहाँ ताल्लुक़ होता, उसका कोई वहाँ पर एक मौक़िफ़ होता कि उन्हें वहाँ जाकर बोला तो उसकी बात चलती वहाँ पर। तो इस वास्ते हमें उसे बना रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के औलिया वो ही जो अल्लाह से ताल्लुक़ ऐसा रखे, ईमान वाले ही, हमें उनको कारसाज बना रहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कल मदद। समझ में आया? तो क्या कर रहे हैं उन्होंने हमारे लिए क्या हो गए, वकील हो गए भाई, कारसाज हो गए। तो हमें क्यों नहीं पुकारे हमें उनको? बस समझ में आई? तो औलिया अल्लाह को पुकारना क्या, अल्लाह अल्लाह उन्हें हमारी मदद करते हैं क्या? तुम्हें दुनिया के किसी गैर को, बेईमान को, काफिर को, मुशरिक को किसी न किसी अपना काम बनाने के लिए क्या करते, उसका वकील बना लेते, उसको वकील बना लेते। तो हमें क्या करे, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो कैसे हैं, वो ये मखलूक में से किसी का भी उनको खौफिश नहीं और न वो गमगीन होते हैं, उनको कोई रंज और गम भी नहीं आता और वो किसी के खौफ में आते ही नहीं। यहाँ के वकील को पकड़े तो दूसरे से डरता है, पुलिस वाले से डरता है उन्हें, CBI से डरता है उन्हें, दूसरे बड़े लायर से डरता है उन्हें, फलां से। ख्वाजा को मैं अगर पुकारूंगा तो ख्वाजा किससे डरते, किसी से नहीं सिवाय। तो क्या बोला अल्लाह उनको, क्या बोला, मेरे औलिया हैं वो, और मेरे औलिया क्या हैं, वकील हैं। किसके वकील हैं वो? मखलूक के, अल्लाह के बंदों के, अल्लाह पर ईमान रखने वाले मोमिनीन के वो क्या हो गए, वकील हो गए, वो कारसाज हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला उनको गैब के ख़जाने उनके हाथ में दिया कि तुम जिसे चाहे अता कर दो, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, सिर्फ लेने वाला चाहिए। तो कौन है वो? ख्वाजा मोइनुद्दीन को हम पुकारे तो दीन को तुम्हारे अंदर जिंदा करते हैं। किस तरह दिन हो? मोइनुद्दीन, मुईन के माने मदद करने वाले, मुईन मदद करने वाले, किसको? दीन की मदद करने। किस तरह मदद कर रहे हैं? दीनदार को मदद कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, जो ईमान वाला है वो अपने कदम साबित रखकर अपने ईमान के रास्ते में आगे बढ़ता हुआ किसकी तरफ बढ़ रहा है? अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। तो मोइनुद्दीन को हम पुकारें ख्वाजा। इतनी बात यहाँ पर क्या समझना कि हम गैर को नहीं, अगर हम ख्वाजा को अपना वकील बना ले तो क्या वो हमारा काम पूरा नहीं करेंगे? हम वकील बने, हम उनको खुदा नहीं बने। वो खुदा हमें उनको क्या बोले, उन्होंने देने वाले, उन्होंने खुदा नहीं माने हमें उन्होंने। इसमें शिरक नहीं, शिरक को कुफरी में समझाना चाहता था, जो साहिबा पूछे वो अभी हाजिर हुए नहीं। तो यहाँ तक तुम्हारे इसलिए क्या, हमारे अहले सुन्नत वल जमात में अल्लाह के जो औलिया हैं, हम अल्लाह के औलिया को पुकार सकते हैं। किस क्या मान करके पुकारते हैं हम? वो हमारे वकील हैं, कारसाज हैं, और उनका ताल्लुक़ वही वकील बन सकता है, वही हमें हमारा काम बना सकता है। कहाँ की चले गया ऊपर से निकल गया। वैसे कैसे क्लास कर लेना तो मैं इधर आ जाती क्या उनको नहीं, वहाँ पे तुम्हें पीछे दीदी बाके तो तुम्हारे जब बजबज को चल रही ना वहाँ लग रहा है। हाँ वो रहेगा, वही पप्पू के पास जो मकान तभी हट को बैठो जगह पर। नहीं तो फिर इधर भी आ गए जाए हम क्या उसके अंदर। हाँ ये को हो रहा हूँ पलट पड़ तो यहाँ बैठ जाओ आप। नहीं वो आराम से लेके जाए, इधर उधर रहे तो अच्छा ही रहता है। अल्लाह ताला खुद क्या बोल रहा है कि वो मेरे औलिया हैं। औलिया के माने क्या? खुद भी जने बोलो परवाह नहीं। हाँ दोस्त, वली दोस्त को बोलते हैं,
किसका भी दोस्त हो सकता, दोस्त का एक माना उन्हें शैतान का भी दोस्त हो सकता, अल्लाह का भी दोस्त हो सकता। और कितने उसे बराबर एक बार फिट करो ना, कैसा कि उन्हें क्रॉस है सर का दिख रहा है, जितना जा रहा है वो क्रॉस है नहीं उन्हें। नहीं वो वैसा है सब। ओहो अच्छा अच्छा, वो अडेप्टर उसका पिन होल्डर वैसा ही कि तुम्हें वही साउट को मार लग चाहिए। मेरा फोन है टेबल पर। अम्मी सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लु अला नबी। सब भी पढ़ो, बीच में शैतान का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन। क्या नाम तुम्हारा? उवैस फैज। तुम्हारा? अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान फैज। शेख फैज, मोहम्मद फैज। कौन आ रहा है? तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन। आधे जने का आवाज इस नहीं आ रहा है। अल्लाहुम्मा रख डालेंगे कि हाँ? खाना रख डालेंगे कि खाए तो आवाज आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नहीं, गर्म पानी पीने दे डालना, मेरा चुरका लगता है ले ये। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नहीं, दिल में पढ़ने का वक्त अलग। कौन बोले सब? इसके जब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके मलाइका युसल्लूना सलात भेज रहे हैं अलन नबी नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो सल्लू अलैहि तुम भेजो सलात उस पर यानी नबी पर। वसल्लिमू तस्लीमा और सलाम भी पेश करो और तस्लीमात भी पेश करो। इसमें हुक्म है, क्या है वो? करो करके जब बोल रहा है तो वहाँ पर अमर है, वो उसमें हुक्म है अल्लाह का। और उस हुक्म को हमें फ़ौरन क्या करना, हुक्म की ताबेदारी करना। तो वो आहिस्ता नहीं होती, मुंह में दिल में नहीं होती, ज़ोर से छोड़ना। करो का हुक्म उसमें आया, मैं वो नहीं पढ़ा, दरूद पढ़ ले कहूँ तो मैं भी दरूद पढ़े, आहिस्ता पढ़ लिए, दिल में पढ़ लिया। जब ये आयत को जब पढ़ते हैं तो उस वक्त दरूद को खुलकर आवाज़ से पढ़ना चाहिए। औरतें कम आवाज़ में पढ़, लेकिन ज़बान से आवाज़ इतनी आना कि कान को हमारे सुनाई देना। यहाँ की आवाज़ हमारे कान तक सुनाई दी तो भी परवाह नहीं, लेकिन आवाज़ से छोना। जबकि इसके अंदर हुक्म है, इसके अंदर क्या है? अल्लाह का वो हुक्म है। हमें अपने मर्ज़ी से पढ़ते हैं तो हमें दिल में पढ़ ले सकते हैं। और दरूद के पढ़ने के वास्ते कोई शर्त नहीं है, वज़ू के साथ पढ़ सकते हैं, बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। और क्या है, गंदी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर हर वक्त पढ़ सकते हैं। गंदे रास्ते से गुज़रते ही वहाँ नहीं पढ़ना, बाज़ारों में जाते ही वहाँ नहीं पढ़ना। ज़मीन के ऊपर सबसे बदतरीन जगह कौन सी है? बैतुल खुला, बैतुल खुला, बाज़ार। बाज़ार जो है पूरी ज़मीन के ऊपर ढूंढे तो बदतरीन जगह कौन सी? हदीस का मफ़हूम, बाज़ार जो है सबसे बदतरीन जगह। और सबसे बेहतरीन जगह कौन सी? मालूम नहीं, छोटे छोटे बातें से बोलो।
हाँ? मस्जिद, हाँ मस्जिद तो है, लेकिन जन्नत, मस्जिद भी जन्नत के बागों में से है। तो वो जो है बेहतरीन जगह, मस्जिद जमीन भी बेचना हमें बेहतरीन। जन्नत हाँ? को जाने अभी कहाँ? जमीन के ऊपर जमीन के जन्नत ऊपर जो है हाँ मस्जिद, तो हाँ मस्जिद भी है, जन्नत भी यही है, हम ना नहीं मालूम। अब मैं क्या बोलना, उससे पाक का एक वाक़ियत में जब बोलते ही ज़मीन का याद आ गया मुझे। एक जोगी कौन है जो जंगलों में बैठकर वो ये करता, योगा ये वो करके कमाल हासिल कर लेता, उन्हें पानी पर चल सकता, हवा में उड़ सकता, ऐसे सब योगा करके कमाल हासिल कर लेता। ऐसा एक जोगी सरकार गौसे पाक के पास आया और आकर एक फूल उठा के दिया, बोलो ये कहाँ का है। ये आप लेकर देखें, देखकर ये ज़मीन पर ये फलानी जगह का है करके बोला। गौसे पाक फूल कौन सी जगह का है, ज़मीन पर फलानी बस्ती फलानी शहर का कहाँ का है, तो ये वहाँ के बाग से लाया है तोड़कर। बोले आप बाजू से हाथ डाले और इधर से तोड़कर उसे एक फूल दे डाले, ये कहाँ का है बोलो। वो फूल रख लेकर वो जोगी बोला कि 7 ज़मीन और 7 आसमान ढूंढ डाला तो मैं कहीं भी नहीं मिल रहा है, ये कौन सी जगह का है मालूम नहीं मुझे। तो आप फरमाए कि मैं ये जन्नत के बाग में से तोड़ा हूँ। हाँ क्या है ये जन्नत के बाग में, कहाँ जन्नत अलग थी, ज़मीन पर यहाँ से उठाए तो उसके नीचे से। तो अगर ईमान तुझे होता तो क्या करता, तू वहाँ तक रसाई करता, वहाँ की चीज़ भी यहाँ लेकर आ सकता है, चल सकता है। कई अहादीस में बता सकता हूँ आपको कि जहाँ पर ज़मीन पर रहते हुए हम जन्नत की सैर करके आ सकते हैं। हमें वहाँ नहीं जा रही, हमें गोल फिर कर सुबह से शाम तक कमाने के चक्कर में ही सब, इससे बढ़कर हमारा रास्ता और मंजिल कौन सी भी नहीं है। तो हमको उससे बदलना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़रे दिन के वास्ते और छोटे से पेट के वास्ते। कमाना नहीं, चुपके बैठ जाना, घर में सोना, वो मन नहीं है, करना ही है, इसका भी काम और उसका भी करना, दोनों भी करना है। और उसे छोड़ डालेंगे, हमें खालिद इसमें लग जाएंगे तो रुहबानियत है, ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। क्या बीवी बच्चे कारोबार काम धंधा छोड़कर अलग होकर जंगल में बैठ जाना इस्लाम में नहीं है ऐसा। तो क्या बोल रहा था, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया, वली वाहिद सिंगुलर, एक, वली बोले तो एक, औलिया उसकी जमा प्लूरल ज़्यादा। तो अल्लाह तबारक व तआला जब बोलता है तो क्या बोलता है, तमाम औलिया, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे औलिया जमा में है, एक नहीं कई औलिया। और हम अहले सुन्नत वल जमात के हम क्या हैं, कौन सी जमात में, अहले सुन्नत वल जमात। कब से है ये जमात मालूम नहीं, छोटे बच्चों को छोटे बातों में बोलना पड़ता है। ये अहले सुन्नत वल जमात कब से है, कोई भी तुम ना जितनी समझ है बोले तो मैं ज़रा तुम ना आगे बढ़ाऊंगा। 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल कब से है, हुजूर के बाद से, हुजूर के बाद से। 4 इमामा भी जब ये कर दिए थे तब से है। अब ये जो तबलीगी जमात है कितने साल से है, 100 साल से, हाँ? 100 साल से है, 100 साल से ज़रा ज़्यादा छः बोलो ना। मैं जब इतनी उम्र के थे तो उन्हें 17-5 साल के, 50 साल के, 60 साल के थे। मस्जिद हमें आने देता नहीं था, मैं मस्जिद के अंदर दुकान पर हमारे नहीं आना, वैसा था। अब क्या हो गया, छा गई हूँ। तो उससे पहले थी क्या वो जमात, नहीं थी।
अहले हदीस की जमात, हमें अहले हदीस के ऊपर चलने वाले जो बोल रहे हैं, थे क्या उन्होंने, कितने साल के पहले आए, कितने साल उनके एक ये हिस्ट्री है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी तो उस वक्त ऐसा जब कोर्ट में चला तो एक आदमी आकर बोला कि मैं अहले हदीस से हूँ। कोर्ट के केस में जज पूछता है, ये कौन सा पूछा उन्हें। गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज कर रही है यहाँ पर सुन्नी शिया, शिया। इस्लाम के दो सेक्ट, एक सुन्नी एक शिया, ये तू कहाँ से आ गया पूछा। तो जब तक रिकॉग्नाइज कौन से थे, दो फिरके थे इस्लाम में, एक सुन्नी एक शिया, दो डिवीजन थे। ने मैं अहले हदीस बोला तो उस वक्त यानी 150-200 साल के अंदर इन्हों पैदा हुए, उसके पहले इन्होंने नहीं थे। ऐसा तुम्हें उठाओ और ऊपर जाओ तो आज जो ये जो लंदन इंग्लैंड में ही ना मुसलमान बनकर कौन वो अहले खादियानी। खादियानी कितने साल से ही, उससे पहले वो नहीं थे। 300 साल के अंदर उन्होंने गुलाम अहमद खादियानी, खादियान में उन्होंने पैदा हुआ। तो मेरे पास भी जिब्राइल आते ही मैं भी रसूल हूँ बोलकर रिसालत का ऐलान करें। उन्होंने इस्लाम में ही नहीं। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लम आखिर नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं ना क़यामत तक आएंगे। अगर कोई भी अगर नबूवत का दावा करे तो उन्हें क्या है, झूठा है। उससे पहले अगर देखेंगे तो तुमको इस्लामिक हिस्ट्री मालूम नहीं, खारिजी नो बेहद थे। इन्हों पूरे एक 600, 700, 800 साल के पैदावार हैं और बहुत सारों को पहले के जो अहले सुन्नत के खलीफे थे उन्हें ख़त्म भी कर डाले उनके। अब जो बाकी कौन है, अहले सुन्नत वल जमात और नई पैदावार के ये लोग। तो अहले सुन्नत किसे बोलते, रसूलुल्लाह सल्लम के हर सुन्नत पर चलने वाले को। हमें सुन्नी मुस्लिम का तो आम इंसान क्या समझ कर है, सुनकर ईमान लाए, इस वास्ते हमें सुन्नी मुस्लिम। सुनकर ईमान लाए ना उन्होंने, सुन्नत पर चलने वाले को सुन्नी बोलते हैं। और सुन्नी अहले सुन्नी यानी अहले सुन्नत वल जमात, और बहुत समझना तुम्हें लोग, बहुत सारे चारों इमाम को मिलकर अहले सुन्नत बोलते हैं। तो हमारे जो हैं 2 ईद हैं, कौन से ईद हैं, रमज़ान और बकरीद। इसके सिवा उस दौर में कोई दूसरी ईद अल्लाह के तरफ से नहीं है। ईद के माने क्या है, खुशी का इजहार करना, खुशी का इजहार हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मीलादुन नबी हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी नेमत है, वो रहमत है। अल्लाह हमको जो ऐसे नबी हमको दिया आखिरुज़्ज़मा, ये इतनी बड़ी नेमत है, अगर कोई उसकी कदर करे तो उन्हें औलिया में शामिल हो जाता है। जब उन्हें कदर नहीं करेगा तो उन्हें वो औलिया में, तो इन्ना औलिया इस वास्ते बोले अल्लाह कि एक नहीं दो नहीं, कितने ईमान वाले ही ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, औलिया में। इन्ना औलिया, अल्लाह के वो औलिया हैं। औलिया होना हमें अल्लाह के भी हो सकते हैं, शैतान के भी हो सकते हैं। अगर तुम्हें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं उनसे तुम्हें खुश होते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं और उनके सुन्नतों पर चलते हैं, तो वो तुम्हारे लिए खुशी का सबब है। वो भी ईद हमारे लिए, इस वास्ते क्या है, ईद मिलादुन नबी हमें मना रहे। फिर उसके बाद जलीलुल क़द्र औलिया में सरकार गौसे पाक और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। ये तारीख़ अगर मैं समझाऊंगा तो तुम्हारे लिए ये वक्त बस नहीं। तो इतना समझो कि सरकार गौसे पाक ऐसे वली हैं जिनका क़दम हर वली के गर्दन पर है।
अगर कोई अपने आप को वली अल्लाह उसको वलायत देता है तो क्या है, गर्दन पर उनके गौसे पाक का खदम है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आपके दौर से बाद आ रहे हैं और वो हिंदुस्तान में क्या है, हिंदल वली, पूरे हिंदुस्तान के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनको विलायत का मकाम, शहंशाह औलिया का मकाम दिया है। और ये जो काम हम कर रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, मैं ये बताने के लिए इतनी बातें तुमको समझाया। ये जो हैं मामूलात हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो ईद हैं, ये क्या हैं, मामूलात हैं। हमारा मामूल है कि हम इससे भी खुश हो जाए और ये गलत नहीं है, ये मामूल है। ये एक नेक काम के लिए हमें खुशी का इजहार करना और अपने अकीदे को पालने के वास्ते। अकीदा ऐसी चीज़ है जिसको पालना पड़ता है। अकीदे को अगर नहीं पालेंगे तो क्या होता, अकीदा वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अकीदा पलता किससे है, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मामूलात हैं हम इसमें, हाँ इसमें हम हिस्सा लेकर हम उसके अंदर खुशी का इजहार और क़ुरबानी। अगर हमें किसी को पसंद करते हैं, मेरे बच्चे को पसंद करे तो हमें उसे कुछ खैर कुछ लाकर देते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं। इसी तरह औलिया अल्लाह से अगर हम खुशी का इजहार करेंगे तो क्या हमारे से बेजार हो जाएंगे? ये बात दूसरे रुख में समझो। हमें या गौस बोल के पुकारेंगे या ख्वाजा बोल के पुकारेंगे, खुशी से पुकारेंगे, कहीं को भी जब पुकारे सो आ जाएंगे क्या मन में? मुझे पुकारे क्या, हाँ मैं तुझे गले लगा लेता हूँ, तू मुझे याद कर। और किसे पुकारेंगे हमें? औलिया को पुकारेंगे। पुकारते जब हैं तो हमें उनको मुर्दा समझकर पुकारते हैं या जिंदा समझकर पुकारते हैं। अकीदा है, मैं जो बोल रहा हूँ तो वो छोटे छोटे बातों में ये हमारा अकीदा है, इसी अकीदे पर हमको चलना है। कौन है वो, जिंदा है क्या मुर्दा है? कौन सी भी घर में भाई उनका इंतकाल होगा, वहाँ जाकर उन्होंने जिंदा ही बोल के पुकारते हैं उनको नहीं। अच्छा मालूम भाई उन्होंने इंतकाल होगा, मुर्दा है। पुकारते किसे? जिंदे को पुकारते हैं। तमाम औलिया अल्लाह क्या है, वो जिंदा है, अपने अपने खबरों में है, लेकिन वो कैसे ही जिंदा है। अगर तुम्हें हकीकत को समझना है तो कोई इंसान भी मरे, अब मेरा इंतकाल होगा पड़े, अब जब हजरत इतना बोलते थे ना, कहाँ जब जरा बोलो, बोल कर देखे तो क्या ही नहीं, हजरत तो मर गई। तुम्हारी निगाह में हजरत मर गई ही, लेकिन वो हजरत सुनते ही मैं क्या बोले, और तुमको देखते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। हाँ हाँ इनो साहब के क्या, इनका खान साहब अच्छा मेरे बारे में ऐसा बोले नो, वो सुन लेते हैं और देखते भी हैं तमाम। अच्छा उन्हें कौन के राम स्वामी कुमार स्वामी है, उन्हें फीनारी जहन्नमा मर गया, देखे तो उन्हें उसके पास जाको देखे, किसका किले को जा रही, देखता उन्हें, देखता है उन्हें भी, सुनता है उन्हें भी। ये बात समझना क्या है, उन्हें किसी बेईमान रहे या उन्हें ईमान वाला रहे, जब उसका इंतकाल हो जाता है उसकी रूह जब जिस्म से बाहर निकल जाती है तो इतनी वसी हो जाती है कि पूरे कायनात को देखती है, इतनी आज़ाद। जैसा एक परिंदे को तुम्हें बंद कर को रखे, खोल को छोड़ेगा फड़ फड़ा को पूरी जगह उड़ूंगा बोलता ना, इस तरह खल्ब जब बाहर निकल जाता है तो तमाम चीज़ों को नीचे से ऊपर तक देखता है, यहाँ तक के आसमान पर उड़ने वाले परिंदा जो है वो नर है या मादा है वो भी देखता है। उतनी उसकी आंख तेज हो जाती है, उसके बाद हमको नज़र नहीं आती, उसको नज़र आता है। और इसी तरह जो ज़मीन पर रेंगती है चूंटी, वो चूंटी की आवाज़ सुनता है, तुम्हारे ज़ोर से बोलने की आवाज़ क्या, अब बोल देना आई नहीं इतना सभी कराया वो कराया, तो जो भी उसके पीछे बोलेंगे
क्या होगा, उसको सुनाई देगा। कैसे हदीस में क्या आया कि जिस जनाजे के पीछे 40 लोग उसको अच्छा आदमी था, नेक था, ऐसा उसकी भलाई और उसकी नेकी और उसको अच्छा बोलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे हिसाब व किताब माफ़ करके उसको जन्नत में भेज देगा। और 40 आदमी अगर बुरा बोले उसके बारे में कि नहीं ऐसा था, वैसा था, वो था, ये था, तो उन्हें नेकोकार आलिम हाफिज क्या भी रहा तो भी क्या हो जाएगा, उसको जहन्नम रसीद कर देगा, क्योंकि पीछे वाला। तो क्या मालूम हुआ कि वो सुनता है हमें जो भी बोलते हैं, और कितनी तेज होती है आंख उसकी, तो उड़ते परिंदे को नर या मादा देख सकता है, और ज़मीन पर रेंगने वाले चींटी की आवाज़ भी वो सुनता है। इसलिए उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। जब मामूली सा इंसान, गुनाहगार इंसान वो देखता और सुनता है, तो जो 24 घंटे अल्लाह के जिक्र में जब रहते थे अल्लाह के वली औलिया, उनका क्या हाल रहेगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती क्या हाल में रहेंगे, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के साथ रहेंगे, मैयत में रहेंगे। जब वो मैयत में रहेंगे तो उन्होंने जो बोलेंगे, जो हुक्म करेंगे वो हो जाएगा। तुम ना पूरे अजमेर के बहुत सारे किस्से मालूम हैं, तो अन्ना सागर का किस्सा क्या है मालूम? दे बोले जाकर ये देव लोटा उनका देकर उसे जाकर बोलो कि ख्वाजा बुलाते हैं। मालूम सुन को ही तुम्हें नहीं सुने? अच्छा, जुम्मा को आते हैं बराबर 1:40 पर पहुंचेगा तो 1:40 पर 2 को घुसते हैं। अंदर आज वो मिलता सभी, वो एक दिन सुनने जाता, वो भी सुनते नहीं। नंगी है, कब जगह है, ये कभी बाहर जाए, सामने उसके सामने वाले जरा हटो, जरा जगह बनाओ, खोलो बोले, और उन्हें हटकर उनको जरा अकोमोडेट करे, उनको जगह दिए, तो अल्लाह का वादा है तुम्हारी जिंदगी में जहाँ तंगी है उसको खोल देगा। कितनी बड़ी बात, इतनी सी महफिल है, जगह तंग है, एक आदमी आए तो तुम्हें उनको क्या तुम्हारी जगह में डाल ले, चेयर पर ऐसा वैसा करके उनको बैठा लिए। तो तंगी में जब तुम्हें उनको आसानी दिए तो अल्लाह ताला का ये क्या वादा क्या है, तुम्हारी जिंदगी में जो तंगी है उसको अल्लाह ताला दूर कर देगा। इन्ना मअल उसरी युसरन, बेशक तंगी के साथ आसानी है। तुम्हें यहाँ उसके लिए इतनी सी आसानी करे अल्लाह ताला, तुम्हारी जिंदगी में जो तंगियाँ, तंगी को तो मालूम हो रहा ना, कनाडा में तंगी को तो छोटी बात वो तुम्हारी तंगी में है। ये तंग जो है, ये तंगी जो है अल्लाह ताला उसको, हाँ वो तंगी को अल्लाह तबारक व तआला कुशादा करना देगा। ये हमारे सलीम साहब कुछ बात करे आज? नहीं करना नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, बैक टू बैक बहुत हो गई मीटिंग सर। हाँ हाँ और ट्रैफिक हाँ, वो तो फासिला है ना। उन्होंने जो है बार 2 बार भी इतवारों में मैं जो रूबरू बोल कर रखे वो आज उनकी अम्मी का ये गर्मी अगर कोई लगती है तो फैन डालेंगे। ठंडा सेट ले बहुत ठंडा है। डॉक्टर जर्किन की जरूरत पड़ती है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह, हम ही तुम्हारे औलिया हैं दुनिया में और आखिरत में। कौन? आखिरत में भी और दुनिया में भी हम तुम्हारे औलिया। अल्लाह से मांगना ये बहुत बड़ा आज जो है मसला है। एक जमात है जो बोलती है कि औलिया अल्लाह के दर पर जाना भी नहीं और उनसे मांगना भी नहीं, और ये तबका है जो बोलती है कि उनके पास जाना और उनके पास दुआ करना। मांगना तो मांगना जो है ना, ये मांगने का लफ्ज़ बहुत मिसलीडिंग है।
मांगते अल्लाह के अल्लाह ही से हैं और देता अल्लाह ही है। मांगते हम देखते हैं कि हम वली के दरबार पर गए हैं और वहाँ पर मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। कोई ऐसा है क्या जो उनसे मांग रहे हैं? नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। जाहिल से जाहिल मुसलमान भी अगर है तो ऐ वली अल्लाह तुम्हें देने वाले तुम्हें दो, नहीं बोलते, नहीं बोलता है। इनके वसीले से दियो बोलते। हाँ, तो दुआ को अल्लाह दुआ ये मांगना जो है, दुआ करना वसीले से करना इस्लाम में शुरू से और इस्लाम के पहले से साबित है। जब बरसात नहीं होती थी तो वसीले से मांगते थे, उनके वसीले से बहुत क्या बोलूँ मैं, इसके दलाइल हैं, लेकिन पूरे दलाइल हमें एक साथ बच्चों को नहीं समझा सकते। बस इतना कि हमारी बात मान लो, ये सच है। तो कोई भी वली के पास जाकर या वली अल्लाह तुम्हें मुझे दो, ये नहीं बोल रहा है। ये रोता है कि मुझे ये मुश्किल है, मुझे वो मुश्किल है, मुझे वो मुश्किल है, और वो सुनते हैं मेरे ये मसाइल हैं, मुझे ये हैं, तो वो सुनते हैं। अगर इसका अक़ीदा नहीं है हमें कि वो सुनते नहीं हैं तो क्या होंगे? हमें ईमान से बाहर हो जाएंगे। हर बंदा जो मज़ार में है या कब्र में है, जो भी है वो क्या करता है? सुनता है। जब हम किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं तो वहाँ पर कैसे सलाम करना बोल रहा हूँ, इसके पहले भी नहीं सुनते भी बोले। हाँ, कैसा करना? अस्सलाम वालेकुम और या अहलल कुबूर हाँ इन्ना हाँ। इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक। हाँ, एक जने तो इन्हों तो बोलेंगे। अच्छा, दूसरे अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तमाम खबर वालों पर अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, है खबर वालों। इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकुन, बेशक हम तुमसे आकर मिलने वाले हैं। क्या बोलना? अब जो गए ही हमें आगे गए ही उन, और हमें पीछे ही, और हमें भी कहाँ जाने वाले ही, कोई और नहीं है। चांद में कहाँ गए थे भी अंदर ही थे, लेकिन वहाँ पर हमें तुम्हारे पीछे आने वाले ही। तो उससे किस लिए अस्सलाम वालेकुम बोले? मुखातब को सलाम करते हैं। जो मुखातब है, सामने है, मौजूद है, सुनता है, उसको हम क्या करेंगे? सलाम अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। जो सामने नहीं है या सुनता नहीं है, जो मुर्दा है, वो क्या नहीं करेगा? सुनेगा नहीं। तो क्या मालूम हुआ कि तमाम अहले क़ुबूर क्या हैं? जिंदा सुनते हैं। और कौन आए उनके पास वो जानते हैं, देख लेते हैं, और उनके पैरों की आहट भी सुनते हैं। जितने भी गए उनके पैरों की आहट सुनते हैं। ये एक वाक़या मैं इसके पहले भी बोल कर रहूँगा आप लोगों को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ताल्लुक़ से दो बातें बोलकर गुस्सा करेंगे। मद्रास में जामिया मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद, नवाब साहब की मस्जिद में, प्रिंस ऑफ आर्काट की जगह, और उसकी जो है बहुत बड़ी मस्जिद, और वो उनके ट्रस्ट में, उनके इसमें चलती है। वहाँ पर बाजू मज़ारात हैं, उसमें एक मज़ार है जो जिनको बहरुल उलूम कहते हैं। उस ज़माने के बहरुल उलूम, आज हमें सबको उलमा को बहरुल उलूम बोलते हैं, लेकिन मेरे पीर व मुर्शिद के जैसा बहरुल उलूम मैं ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना बड़ा बहरुल उलूम बोले तो सही बहरुल उलूम। और उनके ताल्लुक़ से अब मैं अगर बोलूँ तो मेरे अहवाल ऐसे ही कि मैं आपको पूरा नहीं बोल सकूँगा। तो बहरुल उलूम एक थे,
यानी हर बहरुल उलूम के बहर किसे बोलते? समंदर। देख कर ही क्या समंदर तुम्हें लगा? बेंगलोर से बाहर जाको ही, हाँ कहाँ जाको ही, मलबार के तरफ, केरला की तरफ, मंगलूर, उधर सब जाकर ही बड़ी समंदर तो देख कर ही नहीं देखे, बहुत बड़े समंदर, बहुत बड़ी दरिया, उसको बहर बोलते। तो इल्म का बहर समंदर, दरिया छोटी, नदी, नदी से बड़ी दरिया, दरिया से बड़ा समंदर। तो इतने इल्म के समंदर बहरुल उलूम, उनके पास ये नाई, नाई बोले तो कुत्ता नहीं, हजाम, दाढ़ी बनाने वाला, चेहरा बनाने वाला, रोज़ाना आता उनके पास चेहरा बनाकर जाता। तो वो हजाम बोला कि सरकार मुझे ज़रा छुट्टी दो, इजाज़त दो, मैं अजमेर को जाके आता हूँ। बोला सुनको ही तो लोग मज़ा आता है। मैं तो सुन कोई नहीं, हाँ? मैं तो सुन कोई नहीं, हाँ, हमें भी बुशरा और नहीं सुन। हाँ, वो नहीं सुने तो मैं इनको ताज़ा करेंगे। और नहीं से लोगों को जो बड़े बातें बोलता हूँ उन्हें समझ जाते हो। वो स्टैंडर्ड करने बोले तो खाली औलिया अल्लाह और वकील के बारे में जितनी सी समझ है, अगर कोई उसका खिदा बना ले तो अपने काम पूरे आनंद फानन बना ले सकता है। अबे उससे पहले अब एक बोलने को था जो अबू हाँ अनासा का की हाँ अनासा अन्ना सागर का, हाँ वो हजा का बहुत सारा वो भी बोलता है अन्ना सागर। तो ये जो यहाँ जो थे हमारी आंखों के सामने, यानी दौर में, नवाब साहब प्रिंस ऑफ आर्काट के दौर में, उन्होंने जिंदा थे बहरुल उलूम। आज भी उनकी मज़ार वहाँ है, उनके जुलूस वगैरह होते, बाजू कंपाउंड में ही नजदीक। तो उन्होंने बोला कि मुझे ज़रा इजाज़त दो, मैं अजमेर को जाकर ख्वाजा के दरबार को जाकर आता हूँ। बोला अच्छा काहे को जाता है? नहीं मेरा दिल बोलता है मैं जाता हूँ, मुझे जाकर आने इजाज़त दो। अच्छा जाता है तो एक काम कर, मैं एक चिट्ठी देता हूँ, तो ले जाकर उनको पहुँचा दे। बोले अच्छा वो खुश हो गया कि चिट्ठी देते हैं। आप जो चिट्ठी लिख कर फोल्ड करके कवर में डाल कर दे डाले। ये जाकर उनको कहाँ दे? मैं बोला लेकर जा, हाँ, कोई आकर पूछेंगे कि कोई चिट्ठी लाया क्या पूछेंगे तो उनको दे डाल। बोले अच्छा। इसलिए सफ़र करके अजमेर को चले खोल गए। कर नहीं देखना। जाता जाता रास्ते में सोचा क्या लिख को दिया रहेगा इसमें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या लिख के दिए रहेंगे हजरत बोल के, खोल के देखना। इंसान को फितरत है ना इसकी, क्या भी सीक्रेट रहा तो फौरन उसे खोल कर देख लेना। तो क्या करा, रास्ते में खोल कर तो देखा तो कुछ भी नहीं है लिख कर, प्लेन पेपर है, एकदम प्लेन है, इसमें कुछ भी एक हर्फ, एक लाइन, एक कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज़ पहुँचती क्या कुछ अंदर? जो ही पहुंचती आवाज आ रही है आवाज ना, तो क्या करे, अरे क्या भी नहीं है ना, क्या जो चल लपट के रख लिया। रख लेकर वहाँ जाकर मजमे में के अंदर जाकर मैं किसे दूँ क्या करूँ बोलकर अंदर गया, ख्वाजा के सलाम कराया, तो ज़ियारत कराया, सब भी कर ले कहा के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। कोई भी आए तो अब किसे दूँ उसको मालूम नहीं ना। तो बाद देखा कि एक हजरत आए, आकर बोला मदरस से आया क्या पूछे? हो बोला। चिट्ठी लाया क्या पूछे? उन्होंने हाँ बोला। इनको कैसे मालूम होगा? चिट्ठी उठा के दे दो, ये है ले लिए चिट्ठी। 2-3 दिन कब तक रहना इसकी मर्जी थी, पूरा वहाँ फिर लेकर क्या भी मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा है ना। उन्होंने बोले कोई भी आप पूछे तो दे दो, बोले मैं उनको दे दिया चिट्ठी। तो जाने के वास्ते वापस ही को तैयार हुआ। अब मैं निकलने का इरादा कर लिया, निकलने का इरादा कर लेकर अब कैसा जाऊँ, क्या जवाब देती कैसा जाऊँ, तशवीश में बैठ गया वहीं पर। ऐसा एक हजरत आए, बोले ये जाके दे डालो उनको। फिर एक हाँ उनको जाके दे डालो बोल के, तो फिर एक लिफाफा उनको दे दिया। लिफाफा बोले तो मालूम क्या? एनवलप। हाँ
उर्दू की मालूम नहीं था उनको परेशानी, कवर ले लेकर निकल गया। अब आते आते रास्ते में वो दौर, जबकि ऐसे गाड़ियाँ सवारियाँ नहीं, यहाँ से निकला तो मैं पैसेंजर ट्रेन में कब गया रहेगा, क्या हुआ रहेगा, लंबा टाइम बेखबरी इसको कि नो एक दिए थे, अब भी दिए ही ना, वहाँ से भेजे ना, क्या रहेगा। तो लिफाफा खोल करके देखा तो कुछ भी नहीं लिखा है उसके अंदर, वैसा ही प्लेन पेपर वैसा ही। अब उसका दिमाग और ख़राब हो गया। जो वहाँ से लिख कर दिए थे कि चिट्ठी यहाँ ला के दिया तो उसमें कुछ भी नहीं लिख कर था। अब वापस एक चिट्ठी मिली है जो खोल के देखा तो उसमें भी क्या, कुछ भी नहीं, उसमें भी कुछ भी नहीं है। खैर अभी हल तो नहीं होता, जाकर मैं हजरत कुछ पूछना है, आकर वापस क्या करे, लाया क्या पूछे, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या बोलूं, मैं बहुत परेशान हूँ सरकार, मुझे क्या है बोलूं, क्या हुआ है पूछे। खोल कर देखे, आप देख कर मुस्कुराने लगे। ख्वाजा हमारे बहरुल उलूम हजरत जी ने वो खोल कर देख कर पढ़ कर ठंडा बहुत ऐसा मुस्कुराने लगे। बोले मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है, ज़रा मुझे पे समझा डालो, मुझे पहले पे गलती माफ़ करो, मेरी गुस्ताखी माफ़ करो सरकार। मैं आपका लिफाफा खोल कर देखा तो यहाँ पे उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय सरफेस पेपर के। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है इसमें। फिर मैं वहाँ उनको कोई एक बुजुर्ग आए, मैं उनके हाथ में दे दिया, वापस ही पर उन्होंने ला के मुझे और एक दिए। तो मुझे तशवीश थी, मैं खोल कर देखा तो उसमें भी क्या भी नहीं लिख कर था। ये क्या मेरे समझ में नहीं आया, मुअम्मा क्या है ज़रा समझाइए। बोले ये जो लिख कर है उन्होंने पढ़ लिया और उन्होंने जो लिख कर दिए मैं पढ़ लिया। क्या लिख कर थे उसके अंदर, तो बोले कि मैं जो लिखा था तुझे मालूम कि किस में लिखा था, ये स्याही में नहीं लिखा था, इंक में, ब्लैक में, जो पहले बरू में लेकर ऐसा पर से रख कर लिखते ना, वैसा इंक में स्याही में नहीं लिखा था, नूर में लिखा था। किसके हुरूफ है वो, नूरानी हुरूफ है वो, सिर्फ वो पढ़ सकता है जिसकी आंखों में अल्लाह का नूर है। जिसकी आंखों में अल्लाह का नूर है वो नूर पढ़ सकता है, उस नूर से लिखा हुआ है पूरा। तो मैं ये लिखा था कि ख्वाजा ये क्या तमाशा है, तुम्हें इतने लोगों को क्या वास्ते बुला के जमा करते वहाँ, क्या लिखे थे बहरुल उलूम, क्या लिखे ही, क्या तमाशा बना कर रखे ही तुम्हें, तुम्हारी जगह हर तरफ से लोगों को बुला कर जमा कर रहे हैं, क्या वास्ते, ऐसा कैसा कर सकते। तो मैं बोलकर पूछा हूँ, मैं उसके अंदर लिखा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने जवाब लिए ही, उसके अंदर पूछे ही कि तुम, मैं बोलते हैं कि मैं हर तरफ से दुनिया के इतने लोगों को मैं जमा करता हूँ। हाँ, उन्होंने उसमें क्या वास्ते जमा करते हैं, क्यों नहीं रोकते, ये लफ्ज़ भूल गया मैं। जो हर तरफ से दुनिया के लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, इनको आने से तुम्हें क्यों नहीं रोकते, तुम्हारी मज़ार पर, तुम्हारे दरबार पर क्यों नहीं रोकते बोल के उन्होंने सवाल कर रहे थे यहाँ से। तो वो जवाब में लिखते ही, तू एक दिन को वहाँ से आने रोकने नहीं हुआ भाई, इतने बड़े आने वाले लोगों को मैं कैसा रोकूं, तो एक दिन को रोक सके क्या वहाँ से आने वाले, एक आदमी को तो नहीं रोक सके वहाँ पर। आप भी औलिया हैं। कैसा एक आदमी को तुमको रोकने की ताकत नहीं है, मैं नहीं रोक सके तुम्हें उसे, तो उनकी मोहब्बत में आता है। तो मैं इतने बड़े मजमे को, आने वालों को, कौन है वो आने वाले, आशिकी एक बड़ा मसला है, बड़ी बात है, समझने वाले बड़ों को, बच्चों को तो ये नहीं कि जो बुलाते हैं, इन्हों क्या समझकर खत लिखे कि उन्होंने बुलाते ही, तुम्हें क्यों बुलाते हैं, क्यों नहीं रोकते बोल। यहाँ से तो जाता है, उनकी दोस्ती में जाता है या दुश्मनी में जाता है, उनकी मोहब्बत में जाता है। मोहब्बत उसको खींच रही है वहाँ जाने की, उनकी जगह पर जाने, उनसे मिलने की मोहब्बत उनको खींच रही है। जहाँ भी तुम्हें जाएंगे किसी दोस्त के घर पर,
उसमें दुश्मनी लेके जाते क्या? नहीं, मोहब्बत में जिसके घर को जाते। अब ना आई है तो किसकी मोहब्बत में आई है, सुनो, मोहब्बत नहीं रही तो आते नहीं। इतना लंबा फैसला तय करके इतने क्या क्या इसे फलांग कर पूरे निकल कर आते हैं। क्या में आ रहे हैं? वो मोहब्बत में आ रहे हैं, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हुई। तो आज ये मोहब्बत उनके दिल में कैसा पैदा हुई? इतनी मखलूक के दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत कैसा पैदा हुई? उनके दिलों में नहीं पैदा हुई, बुलाने वाले के दिल में पैदा हुई। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद। क्या बोले मौलाना रूम? इश्क जो है पहले माशूक के दिल में आता है, बाद आशिक के दिल में आता है। ये आशिक है जो उनके इश्क में वहां जाता है, वो उड़ कर है। वो आशिक खुद से नहीं जाता है, माशूक तलब कर रहा है उसको। ये माशूक का अट्रैक्शन ये है कि उन्हें उड़ कर वहां चला जाता है। समझ में आया? तो मौलाना रूम मसनवी रूम के अल्लाह के दीनी किताब, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मिशवत। जो भी एक बंदे से दूसरे बंदे के पास आता है वो किस में आता है? उसका इश्क। इसी तरह अल्लाह ताला के दिल में जब इश्क पैदा हुआ तब ही बंदा उसकी तरफ माइल हुआ। जब तक अल्लाह का इश्क उसे खींचता नहीं, वो अल्लाह माशूक है, हम आशिक हैं उसके, तो हम क्या नहीं करेंगे? हम उसकी तरफ मायल ही नहीं होंगे। इतना बड़ा आलम नहीं हुआ तो क्या बोला? आप बेफिक्र रहो या रसूल अल्लाह, हिदायत देना मेरा काम। क्या है वो हिदायत? इश्क उनके दिल में डालना मेरा काम। मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसे बुला लेता हूँ, जिसे पसंद नहीं करता उनको नहीं बुलाता। मैं उनको जहन्नम के लिए तैयार किया हूँ। वो जन्नत जहन्नम के पत्थर ही, वो खुद है नास वल हिजारा। जन्नत का क्या सामान, जन्नत कैसा, ये जहन्नम कैसे दहकती है, वो खुद हुआ। उसकी जो आग है वो खुद है, ग़िज़ा है, क्या है, इनसे जलती है। हाँ हाँ हाँ, वो खुद है नासु वल हिजारा। पत्थर और इंसान डालकर जहन्नम की आग को दहकाता है। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं जिसके साथ मेरा इश्क है मैं उसे बुलाता हूँ, तो वही दौड़ करके वहाँ जाता है। हम खुद से नहीं जाते, समझे? हम अगर जाते हैं कहीं पर, किसी भी बुजुर्ग पर, किसी भी दोस्त के यहाँ, तो पहले क़ल्ब में वहाँ से अट्रैक्शन होता है। आशिक और माशूक का अगर आप देखेंगे मजाज में भी, तो मजाज में ही यही हाल है। माशूक चाहता है कि मेरा आशिक में आए मेरी तरफ। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला क्या बोला? सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ आपको सबूत देकर बोलूँगा। कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फहबब्तु अन औरिफा, मेरे अंदर मोहब्बत पैदा हुई कि मैं देखूं कि मेरे अंदर क्या क्या है। कहाँ पैदा हुई? पहले अल्लाह के क़ल्ब में, अल्लाह की ज़ात में ये पैदा हुई। क्या पैदा हुई? उसके दिल में इश्क पैदा हुआ, मेरे अंदर क्या क्या है मैं देखूंगा। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो उसके बाद उसने खल्क़ को पैदा किया। पूरे की पूरी मखलूक जो उसने लाई अपने इश्क से लेकर आया, अपनी मोहब्बत से लेकर आया, अपने ख़जाने से बाहर ला के ज़ाहिर करा और देखा कि मैं क्या क्या हूँ। तो अट्रैक्शन क्या होता है? वो मैग्नेट की तरफ ये लोहा उधर ही जा करके लग जाता है। तो मैग्नेट सबसे पहला कौन है? अल्लाह। आशिक है, माशूक है। तो वो माशूक है जो अजमेर में बैठा है, वो माशूक है जो बगदाद में बैठा है, वो माशूक है जो मदीने में बैठा है। वो जिसको चाहता है खींच कर लेकर चला जाता है। असबाब तुम्हारे हाथ में रहे न रहे, उड़ा कर लेकर चला। समझ में? कितने मिसालें, कितने ही ऐसे ऐसे लोग निहत्ते, उनके हाथ में कोई वसीला नहीं, कोई सबब नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। हज को चले गए, मदीने को चले गए। कैसे गए? कौन लेकर गया उनको? कैसा पहुँचे? बुलाने वाला जो है वो ऐसा आशिक है, ऐसा माशूक है कि कोई आशिक उससे अलग होकर के नहीं रह सकता। सल्लु अला नबी।
नानु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया वल आखिरा, हम ही तुम्हारे औलिया हैं। कुम, औलिया भी जमा में है, कुम भी जमा में ही है कि तुम्हारे हम औलिया हैं। अल्लाह एक है लेकिन औलिया कैसा बोले? तो अल्लाह की विलायत औलिया के अंदर ही जाहिर होती है। औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो अल्लाह एक है ना, औलिया बोला ना, तो उसके जो औलिया हैं, उसके जो शाख हैं, वो हमारे लिए औलिया हैं, दुनिया में भी और आखिरत में। फिल हयाती दुनिया वल आखिरा, और आखिरत में भी वो हमारे औलिया हैं। तो औलिया का क्या है? हर वली का एक दर्जा होता है। जैसा कि गौसे पाक का दर्जा क्या है कि वो हर वली की गर्दन पर उनका मकाम है, उनका खदम है, खदर मुबारक। सरदार औलिया। हाँ, खदमी अला कुल्ली रखबती वलीन, हर वली की गर्दन पर मेरा खदम है। तो ये मकाम दिया अल्लाह तबारक व तआला उनको। तो उसे आला से आला और अदना से अदना वली, कम से कम दर्जे का जो दर्जा होता है, हर दर्जे में अल्लाह की विलायत अता होती है। और इतनी भोली है, ज़रा गलती करे, ज़रा हो गया, ज़रा तुम्हें उसे रोए पलाए मनाए तो फिर दे दिया। मुश्किल नहीं है, लेकिन करने वाले को समझ नहीं है कि मैं अल्लाह की विलायत कैसे पाऊँ, नहीं होता है। तो तसर्रुफात में बताना चाहता हूँ कि हर वली को जब अल्लाह विलायत देता है तो सिर्फ विलायत देकर ऐसा है कि उसे कोई काम, कोई पावर, कोई ये नहीं देता है। एक मिनिस्टर बना लिया, क्या बोलते, विदाउट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो नहीं सो मिनिस्टर तो होता है ना। यहाँ ऐसा वली नहीं है कोई भी, हर एक को पोर्टफोलियो देकर है। हर एक वली जो है कुछ उसको तसर्रुफात देकर है। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, छोटा वली रहेगा उसे छोटे तसर्रुफात, बड़ा वली रहेगा तो बड़ा उसके कौन से विलायत के बहुत दर्जे ही। इतने तमाम दर्जों में मैं आला से आला बता दिया। अदना से अदना क्या है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वाले का। ईमान लाया तो पहले दर्जे में वली हो गया। जैसे भी ईमान लाया क्या हो गया उन्हें? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वाले। ईमान लाते ही अल्लाह विलायत दे दिया तुमको। अभी तुमने जरा भी तुम्हें उसका एहसास नहीं है। पीर के पास गए, एक वली की खिताब दे दिया, मुसव्विर दे दिया, अली दे दिया, रशीद दे दिया, हर विलायत दे दिया। कैसा? ईमान लाते ही दे दिया। अल्लाह का वादा है ना, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। तो अल्लाह वली है तो जिसे ईमान वाले का क्या उन्हें दुश्मन है? अल्लाह ही उसका वली है और वो उसका वली है। समझ में आ रही है तो बात बोलो, नहीं तो मुझे और वजाहत करने के वास्ते कोशिश करता हूँ। तो वली विलायत के कम से कम दर्जा है, ऊंचे से ऊंचे। इसमें तसर्रुफ बोले तो कमाल, यानी उनको हक है कि उन्हें उतना पावर उनका इस्तेमाल करे। अल्लाह के ख़जाने से निकाल करके उनको देने का हक है। उनका हुक्म चलेगा। जैसे एरिया का है, तहसीलदार है तो उसे ज़रा पावर है, कमिश्नर है तो उसे एक पावर है क्या नहीं? एमपी है तो उसे एक पावर है, सीएम है तो उसके दर्जे के बराबर उसे लिमिट के पावर है ना। इसी तरह अल्लाह की विलायत में अल्लाह के वलियों को क्या है? उनके दर्जे के तसर्रुफात हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के तसर्रुफात को क्या कहने। उनके हुक्म पर हम मखलूक डांस करती, नाचती है ऐसी। जयपाल जोगी का किस्सा सबको मालूम है। ना सागर का बोलना था तो जयपाल जोगी भी याद आ गया मुझे। तो जयपाल जोगी बोलकर उस जमाने में एक जोगी था, यानी योगा करके इतना उसका कमाल था कि हवा में सब ऊपर जा सकता है, नीचे हला में ऐसा खड़ जा सकता है। बेईमान को भी अल्लाह ताला कमालत देता है। तो पानी पर चलना,
हवा में उड़ना, बीच में मुअल्लक़ खड़ जाना, ना इधर पकड़ ना उधर पकड़ ऐसा खड़ जाना, जानवरों पर बैठकर चलना, ये तमाम तसर्रुफ़ात देता है। तो ऐसे औलिया अल्लाह को भी देता है, उसके ऊपर देता है। तो जयपाल जोगी इनके साथ आकर बोला कि पूरे राजस्थान के वो लोग जो ही एक जोगी एक मुसलमान का एक आ गया है, ज़रा उसे जाकर बता। तो आया सामने और बोला कि क्या कमाल है, देख खड़कर ऐसा ऊपर उठ गया आसमान में, फिर वहाँ से खड़ गया, फिर उसके बाद आड़ा लेट गया, फिर खलाबाजियाँ कराया। खलाबाजी का तो पलटा हवा में मारना करके नीचे उतर कर आ गया। मैं क्या समझा है कि ये कमाल जो ने हासिल कराया है ख्वाजा को नहीं है, इनको कुछ भी मालूम नहीं, नो नमाज पढ़ लेकर कर लेकर बैठे ही। तो आप मुस्कुराए, मैं बता क्या करता है, उड़कर ऊपर गया, मैं करना बोल रहा है। आपके नालैन को बोले हुक्म करे कि जरा जा, खड़ा में जो पहनते थे नालैन उसको हुक्म करे कि ऐसा इशारा करे तो वो उड़ कर गए, ने कहाँ तक ऊपर जाता था, थड़ा 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 सब तरह से मारने लगे उसे। ऐसा मार पड़ा कि ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे आके सीधा आपके पैरों पे गिर गए। बोला ये तो कमाल नहीं है, मैं जिंदगी भर ये नहीं कर सकता, मैं खुद उड़ने में जिंदगी मेरी खत्म होगी। ये नालैन से आप जो आपका जो तसर्रुफ है, हाँ उड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। आपका शागिर्द हो गया, मुरीद हो गया, ईमान लाया, आपका शागिर्द। जयपाल जोगी हिस्ट्री का रिकॉर्ड ये मैं बोल रहा हूँ। जब राजा के लोग जाकर राजा के पास कुफार कंप्लेंट करे आपके बारे में, जब पानी पीने के वास्ते गए तो मुरीद लोग जितने थे वहाँ के पानी के वास्ते गए, तो वो अना जाकर ही अजमेर को तो अन्ना सागर देखेगी, तो वो अन्ना सागर का लोटा देकर बोले कि मुरीदों को दिए नहीं, पानी लेने दिए नहीं। वहाँ के काफिर लोग मुसलमान कोई आई थी, पानी नहीं देते पीने बोलकर, ये लोटा लेकर जाओ और उससे बोलो अन्ना सागर को के ख्वाजा बुलाते हैं। तो जाकर लोटा ऐसा पकड़े, ख्वाजा बुलाते ही बोले, पूरा तालाब का पानी उसके अंदर आ गया। अन्ना सागर का पानी किस में आ गया, लोटे में आ गया, ले लेकर के बाजू रख लेके बढ़ गए। देखेंगे क्या करते ना, परेशान हुए के पूरे लोग जाकर कंप्लेंट करें, माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे तो उनको ये वापस नहीं मिलेगा। उनके जानवर भूखे हो गए, मरने लग गए, लोगों को पानी के बगैर उन लोग प्यासे हो करके परेशान हो गए। तो आखिर ले जाकर वापस सरकार बोले कि जाके डालो, माफ़ी मांग रही। तो जाने के बाद अनाथ सागर है, मैं भी देख को आया हूँ, सब बहुत सारे, तो मैं भी जा कहीं नहीं अनाथ सागर। तो बेहद आपके तसर्रुफात हैं। एक था एक और एक नया थी, मैं नहीं सुनी अब तक। एक उनका एक मुरीद, ये राजस्थान के मारवाड़ियों के राजस्थानी लोगों में, नौजवानों में, छोकरे में अब के बातें कमाला सब देख कर मलहूब होकर आके आपके पास इस्लाम कबूल कर लिया। जो रोज़ मंदिर को जाता था उन्हें आकर उनके पास इस्लाम कबूल कर लिया। कर लेकर ऐसे रोज़ महफिल में बैठते, जिक्र के उसके सब आते, सुबह के जिक्र में रहते, तो फिर काम धंधों को सब लोग चले जाते, ये तालीमात में फिर। तो ये जो लड़का जो नौजवान था, उन्हें यहाँ आकर फजर में जिक्र में बैठने के बाद निकल कर देवल को चले जाता। बड़ी देवल है एक मंदिर, वहाँ चले जाता। ऐसा रोज यहाँ आके बैठता, यहाँ भी सुनता, पूरा कर लेता, फिर निकल कर जाता सो टाइम पर वहाँ जा चले जाता। तो दूसरे देखने वाले साथियाँ बोले, सरकार कि आपके पास ईमान लाया है और आकर यहाँ बैठता है और आपके तालीमात सुनता है, जब वापस जाता है तो ये वो मंदिर को चला जाता है। ज़रा आप दरियाफ्त करो। अच्छा उससे पूछे क्या हुआ, तो यहाँ जो सुन रहा है इसके बावजूद तो उधर जाता है, तो अभी बुत परस्ती कर रहा है क्या, अभी बुतों को पूजा कर रहा है। बोला सरकार मेरी गलती माफ़ करो कि वहाँ पर एक देवी मरमर संगे मरमर में बनाकर खड़ी हुई है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। मैं पूजा नहीं करता, मैं उसे इबादत नहीं करता,
लेकिन उस मूर्ति को मैं देखकर, उसमें जो तराशा हुआ है ना, वो देखकर मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं रोजाना उसे देखने जाता हूँ। बाहर के लड़कियों को, औरतों को नहीं देखता उन्हें। मंदिर में जो देव बनाकर है औरत का नक्श, तो वो इतना हसीन है, बोलता मैं ये देखने जाता हूँ उसे रोज मिला। तो सरकार पूछे कि ऐसे बहुत पसंद करता है, अच्छा इस वास्ते तो वहाँ जाता है क्या? अच्छा बैठ बोलकर, ऐसा कर, आज जब सुबह को जाएंगे ना तो बोले ख्वाजा बुलाते हैं। क्या बोले? जाकर वहाँ देखने जाता ना, जाकर बोल सामने से ख्वाजा बुलाते ही बोले। जैसे ही दूसरे दिन जाकर उन्हें बोला कि ख्वाजा बुलाते ही अल्लाह उसको जान दे दिया, रूह दे दिया, और वो चल करके निकल कर आपके पास आ गई, और अल्लाह आपने उनका जोड़ा बना दिया। नहीं, कैसे क्या तसर्रुफात है। अरे वो अल्लाह हमेशा, अल्लाह का वली, अल्लाह उसके साथ हमेशा रहता है। जब वो चलता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके कदम बन जाता हूँ जब वो चलता है। जब वो देखता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। जब वो सुनता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जब वो सुनता है। जब वो बोलता है तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जब उससे बोलता है। हर काम उसका फ़ेल क्या होता है? अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के साथ होता है। इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुहसिनीन के साथ है, यानी एहसान के दर्जे में जो पहुंचा है उसके साथ। मुहसिनीन बोले तो एहसान कर दिया, उसे 1000 रुपये दे डाला, उसके बीमारी में तीमारदारी कर दिया, वो एहसान नहीं है। ये एहसान ये है कि इस्लाम के दर्जे के बाद ईमान के दर्जे में आया, ईमान के दर्जे के बाद एहसान के दर्जे में आया, तो वो मोहसिन हुआ जो सबक लेने के वास्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आकर जान व अदब तय करके पूछे है कि एहसान क्या है, मुझ एहसान के बारे में बताइए। तो वो जो मोहसिनीन हैं अल्लाह के, वो अल्लाह के औलिया हैं, और उनका तसर्रुफ इतना है कि तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए अगर कोई अल्लाह के वली से दुश्मनी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जो अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी करेगा तो वो मेरे साथ जंग का ऐलान कर दे। किसके साथ? अल्लाह के साथ जंग का ऐलान कर दे। जो अल्लाह के वली के साथ क्या करा? दुश्मनी, हाँ दुश्मनी किया, बुरा रखा। तो हमको, हमें जो है ये जो काम हम कर रहे हैं, फातिहा, उर्स, जैसा कि बर्थडे आज हमारे ऐमान, हमारे मंसूर के पोते नहीं, ऐमान इब्ने मंसूर अहमद इब्ने, ऐसा बोलना सब, असमत नज़मुल्ला। अच्छा, तो 3 पीढ़ी तो यहाँ है, अभी 4थी पीढ़ी लाएंगे। तो आज उनका बर्थडे भी आ गया, यौम विलादत भी हो गया। हम दुआ करते हैं कि वो परवान चढ़ें हर तरह की बुराई से अल्लाह तबारक व तआला हाँ उनको बचा कर रखे, और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे पर उनको कायम रखे, और ऐसे ही दोस्त और सोहबत उनको दे, और वो परवान चढ़े, ज़िंदगी में ऊंचे से ऊंचा दर्जा हासिल करें, और दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करें। दीन की दौलत भी अल्लाह उनको नवाजे, और दुनिया की दौलत भी उनको नवाजे, और माँ बाप के उनको फर्मा बरदार बना दे। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि उनको हमेशा हमेशा उनके ताबेदार और उनके फर्मा बरदार हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे खिलाफ नहीं हैं। हर बच्चा, मैं हर बच्चे से खुश हूँ, राज़ी हूँ। अल्लाह तबारक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी हर मुश्किल को आसान करे, क्योंकि कभी नाफरमानी नहीं करे, मेरे से कोई बैर नहीं रखे, मेरे हर हालत में मेरा साथ दिए, और जो मैं हुक्म देता हूँ उसे कभी नहीं ठुकराए, अल्लाह का हुक्म समझ करके कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी दौलत है मेरे लिए कि दुनिया में सबको ये नसीब नहीं होती। कितने हैं पीर होते हैं, बच्चे चोर होते हैं, पीरों के बच्चे चोर होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो गलत हो जाते हैं, ये गलत नहीं हुए,
हर कोई ताबेदार, फरमाबरदार, मददगार और हमेशा मेरा साथ देने वाला, बच्चे, भाई को बच्चे या मर्द बच्चे जो भी हैं, जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, वो मेरे हमदर्द हैं मेरे, और मेरी बात को कभी टालते नहीं। तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि मन रज़ियानहु वालिदाहु फअना इज़न राज़ी। अल्लाह तुम्हारे से राज़ी है या नहीं ये कैसा देखेंगे? तुम इबादतें करे, रोज़े रखे, दिनों रात तुम्हें इबादत करे, तुम्हें खैरात करे, तुम्हें दुनिया के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करे, तुम ये नहीं बता सकते कि अल्लाह मेरे से राज़ी हो गया। इतने नमाज़ें पढ़ा, अल्लाह मेरे से राज़ी हो गया, कोई सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं है। जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी। अल्लाह की रज़ा अलग चीज़ है, तुम्हारा जन्नत का हासिल करना अलग। रोज़े रखे, जन्नत मिलेगी, जहन्नम को नहीं डालेंगे, जहन्नम में नहीं डालेंगे। लेकिन अल्लाह बोलता है कि मैं उनसे राज़ी हो गया। जब उनसे राज़ी हो गया तो हिसाब किताब कब लेंगा तुम्हारे से? माँ बाप अगर राज़ी हो गए तो मैं राज़ी बोल जा, मैं राज़ी होने के बाद मैं चल जाकर जहन्नम में डाल दूँ, कभी भी नहीं हो सकता। तो हमेशा माँ हमारी बाप खुश नसीबी है। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। तो क्या है, तुम जो अमल करो जो ना करो इसकी परवाह नहीं, सिर्फ इतना करो कि माँ बाप को राज़ी करो, क्योंकि इसके अंदर सर्टिफिकेट है। इसका गारंटर कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूलुल्लाह, मेरे नबी। ये हदीस किसकी तरफ से है? मर रज़ियानहु वालिदाहु फअना इज़न राज़ी। ये कौन बोल रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, सरवर कायनात। आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह इससे राज़ी है। तो ये कभी झुठलाया जा सकता है? कभी भला जा सकता है? कभी नहीं हो सकता। अमल जो तुम्हारे नसीब में है वो होता है। अमल के तुम पाबंद नहीं, अमल भी अल्लाह ही की मखलूक है। तुमको जैसे पैदा किया अल्लाह तुम्हारे अमल को भी पैदा किया। अल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून। अल्लाह क्या है? तुमको भी पैदा किया, तुम्हारे अमल को भी पैदा किया, जैसा चाहा वैसा पैदा किया, किसी का गिला नहीं। तो जैसा चाहा उसने ऐसा अमल पैदा किया, जैसा चाहा उसने तुमको पैदा किया। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको क्या कर दिया? वो जैसा चाहत में क्या है? उसकी चाहत, माँ के रहमों में तुमको पैदा किया। तो अमल हमारा ज़ाहिरी है, अक़ीदा हमारा बातिनी है। अक़ीदा दिखता नहीं है, अमल दिखता है। अमल कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है। अक़ीदा अगर गलत हो गया तो पूरा ख़त्म हो गया, तो बचता नहीं। अक़ीदा होना चाहिए। अल्लाह, क्या अक़ीदा होना चाहिए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, का अक़ीदा। ये अक़ीदा है असल। पूरे दिन का अक़ीदा क्या है? एक छोटा सा और वाक़या याद आ गया, बोल देता हूँ। हमारे मदरस का ही किस्सा, जहाँ पर प्रिंस ऑफ आर्काट है, हर नस्ल के बाद दूसरे उनके पीछे उनके आते रहते हैं। तो उस दौर में जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ आर्काट थे, बहुत अल्लाह के रसूल के आशिक, बहुत बड़े आशिक थे। जब मौलाना हमारे बहरुल उलूम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके जनाजे की नमाज अदा करना था। तो उस मस्जिद के अंदर उनकी बहुत बड़ा सहन, बहुत बड़ी मस्जिद, पूरा मजमा, पूरे उलमा, एक बहरुल उलूम, इतने बड़े आलिम का जब तो जनाजे की नमाज अदा करना है तो क्या करेंगे? बोले कि इतने उलमा में से आपकी वसीयत थी ना बहरुल उलूम की। हाँ, कोई ना कोई आकर नमाज पढ़ाए, उनके जनाजे की नमाज पढ़ाए। तो क्या था कि उनका ये था कि मेरे जनाजे की नमाज वही शख्स पढ़ाए जो कभी किसी नमाज को क़ज़ा नहीं किया है। तहज्जुद को, तहज्जुद तक क़ज़ा नहीं होना, ये तहज्जुद वसीयत थी जो बहरुल उलूम डाला। तो जब पूरे आकर खड़े हो गए, सबके इंतज़ार करे कि कोई तो भी आगे आएगा, इतने उलमा, इतने लोग, इतने ही पूरे ही। आखिर अगर कोई आगे नहीं आया तो इन्हों जो हैं
प्रिंस ऑफ आर्काट आगे बढ़कर आ गए, आसमान की तरफ देखे, आज तो राज को फाश फाश कर कर दिया, जाहिर कर दिया अल्लाह वली। नवाब ऑफ आर्काट होने के बावजूद उतने वली बड़े। अल्लाह अल्लाह के तो उनके पास एक काम के जो नौकर होते हैं उसके अंदर एक भेड़ तबका होते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट के, उसके अंदर उन्होंने उनके गाड़ी बांध बहुत घोड़े बनकर गाड़ियाँ चलाना, वो ज़माना था, सो 4 घोड़े 5 घोड़े बनकर जाना, सिंगल गाड़ी में जाना, ऐसा। तो वो कारा नहीं थे, सो वो उसका वैसा एक खानदान वहाँ पलता था, बच्चा माँ बाप पूरे आपके खादिम पूरे। कभी अभी जाना बोले तो बाहर गाड़ी बंद कर को बोले तो नहीं जाओ, गाड़ी बांधना, रेडी हो गया सरकार बोले तो जाना। तो एक दिन बोले उसे कि तू गाड़ी बंद जाना है मुझे, तो क्या हो गया, ज़रा देर कर दिया। उसका नाम था मुत्ता, तमिल मुत्तू है ना, मुत्तू मालूम, तमिल में मुत्तू इतना बोलते हैं तमिल में, तो उसका मुत्ता मुत्ता पुकारते थे उसे। तो गाड़ी बनो बोले तो गाड़ी बनने में देर कर दिया, ज़रा आपको गुस्सा आ गया, बोले से झाड़ को बंद कर कोड़े मारो बोला। वो मुत्ता को झाड़ से बांधकर कोड़े मारो। अब हुक्म है सो, तो लोग उनके सिपाहियाँ आए, झाड़ से बांधकर कोड़े मारना शुरू। रुकते नहीं, मारो बोले सो, रुको बोले नहीं ना, अभी तो मारते ही जा रही, मारते ही जा रही। तो लोग हम बोले, दूसरे मारने वाले बोले, अरे मर जाएंगे, अरे जरा कहती भी बोल, पुकार उनको। क्या बोलूँ मैं, पुकार को माफ़ी मांग ले, क्या बोलूँ मैं, क्या मैं सैयद मुत्ता बोल बोले, क्या बोले, मैं सैयद मुत्ता बोल बोले, सरकार मैं सैयद मुत्ता बोला। अरे खड़ा था, भाग को जा उसके पाँव पकड़ ली, उसके कदम जाकर पकड़, तू सैयद मुत्ता। उनका अच्छा मालूम, उनके सामने पैदा हुआ सो कौन से इसका, कौन से नस्ल का, कौन बच्चा क्या है। जैसे ही मुँह से ही ने बोला कि मैं सैयद मुत्ता, तो फौरन जाकर आपे माफ़ी मांग, उसके पैर पकड़ के। ऐसे बड़े आशिक थे हम लोग कि मोहब्बत जो होती है ना दिल के अंदर, ये असल अक़ीदा है हमारा। इस अक़ीदे को हमें पालना है। अगर हमें नहीं पालेंगे ऐसे था तो हमारा अक़ीदा क्या होगा, मर जाएगा, नहीं रहेगा। तो जितने भी हम उर्स करते हैं, फातिहा करते हैं, जो कुछ भी हम औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत जताते हैं, और ये क्या है पूरे का पूरा हमारे अक़ीदे का एक नमूना है। अक़ीदे को हम अपने ज़ाहिर कर रहे हैं और पाल रहे हैं। और कभी नहीं समझना कि औलिया अल्लाह मुर्दा हैं, औलिया अल्लाह सुनते नहीं हैं, औलिया अल्लाह हमें देखते नहीं हैं। औलिया अल्लाह ज़िंदा हैं, वो हमको देखते भी हैं और वो सुनते भी हैं। और जब उनके क़ल्ब में हमारी मोहब्बत जागती और बुलाना चाहती हैं, तो अपने खादिमों को, तो सरकार कहते हैं कि उनके कुत्तों को बुला लेते हैं। उन सब क्या हैं, औलिया अल्लाह के कुत्ते ही हैं। उनका कुत्ता क्या है, उनका डाला हुआ खाना खाते हैं। तो इस तरह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उनके मकाम या उनके मर्तबे को का हक़ हमें अदा नहीं कर सकते, और हमें इतना हमें हौसला भी नहीं है और हमारा मकाम भी नहीं है। लेकिन इतना तो है कि हम उनको क्या माने, अल्लाह के वली माने। अल्लाह नहीं मांगते ही तो हम उनके वसीले से मांगते हैं, उनसे नहीं मांगते। यहाँ एक शिर्क और कुफ्र का एक मसला रत्ती के बाद बोल रहा था 5 मिनट के अंदर। एक आदमी जाकर एक मज़ार के ऊपर ऐसा आकर, या वली अल्लाह मुझे इतनी तकलीफ़ है, मेरी मुश्किल आसान करो, मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ बोल रहा है। एक आदमी खड़ के सुन रहा है, और इन्हें जो दुआ कराया उसका मसला हल हो गया। अब उन्हें क्या समझा, इनो दे डाले, इनो दिए बोल के समझना तौहीद है, शिर्क है। नहीं समझ में आ रही है बात। इनो दिए बोलकर जो तीसरा आदमी समझा ना, उसकी समझ में ये सही है क्या गलत, उसके समझ में इनने जो मांगा इसे मिल गया ना। उन्हें क्या समझा कि इनो दिए, उन्हें लेने वाला क्या समझा, मैं इनके पास बोला तो अल्लाह दिया, उन्होंने उनको अल्लाह तो नहीं बोला।
तो इन्हें जो क्या समझा कि अल्लाह दिया, नहीं समझा इन्हें। तीसरा आदमी जो सुनता था उन्हें समझा कि इन्हों दिए, इनके पास को मंगाया इन्होंने। तो क्या हो गया, इन्हों दिए। तो अल्लाह का गैरुल्लाह, अल्लाह का वली भी क्या है, गैर है। तो उन्हें दिए बोल के जो आदमी समझा, शिर्क यहाँ पैदा हुआ क्या, यहाँ, हाँ उसके पास समझ में आया क्या, जो समझता है कि गैर दे रहा है, नहीं। हमारा क्या अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। हम वसीले से मांगते हैं, किससे भी मांगते हैं, तो जब तक वो देगा नहीं, अल्लाह नहीं देगा, हमको नहीं मिलेगा। जैसा कि एक पोस्टमैन है, लाकर मनी ऑर्डर दिया, लेकर देखा तो मैं क्या है बोले तो फ्रॉम सबाहुद्दीन 1000 रुपये, मुझे लाख दिया। सो कौन, पोस्टमैन। बच्चा खड़ को कह दिया पोस्टमैन लाख दिया, अब भाई से रोज लाख दो बोलो, क्या बात समझे। उसकी समझ में इतना है कि उन्हें पैसे दिए। हाँ, बच्चा क्या समझा कि पोस्टमैन ला के दिया ना, इसे रोज ला को 1000 रुपये दो बोलो। क्या समझे, पोस्टमैन जो लाया है उसके जेब का पैसा लाया है, उसके पास से लाया है, नहीं भेजने वाला वहां से भेजा है। सबाहुद्दीन भेजा तो हजरत के पास आया है, वरना नहीं भेजता तो ये नहीं। पोस्टमैन लेकिन हर देने वाला तुम ना क्या है, वो अल्लाह का पोस्टमैन है, वो तुमको ला करके दे रहा है, उससे कुछ भी वो नहीं देता। जो समझता है कि इन्हें दे रहा है उन्हें मुशरिक है, वो शिर्क है। शिर्क की बहुत बड़ी तहकीक है। शिर्क के लिए जो भी तहकीक चाहते हैं बहुत ज़्यादा उसकी समझ की हमें ज़रूरत भी है, मिसालों की भी है। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग एक दिन भर का वक्त निकालो, कम से कम महीने में एक दिन, नहीं तो कितने 2 महीने में तो भी एक दिन, कौन से भी एक दिन, ये इतना सा वक्त बस नहीं आता बोलने के वास्ते। तो एक दिन ऐसा निकालो कि दोपहर को आ गए, रात तक रह कर गए, शाम तक रह कर गए, तो थोड़ा ज़ोहर के बाद बैठे, तो ईशा तक बैठे, ऐसा कोई वक्त निकालो और जगह का, तो हमें इंशाअल्लाह उसका वो करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुने इस पर हमें समझने और इस पर हमेशा कायम रहने की हमें तौफीक दे और ताकत दे और हिम्मत दे, और तमाम दुश्मनों से हमारी हिफाजत करे और हर तरह की मुश्किल को हमारे लिए आसान करे। जितने बीमार हैं उनकी तमाम बीमारियों से उनको सेहत नसीब करे और सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। तमाम मेरे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, तमाम के तमाम को अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों को खोल दे, सबको देने वाला बना दे, सबको पालने वाले बना दे, सबकी हाजत रवाई करने वाला बना दे, सबकी मदद के मददगार बना दे। या अल्लाह इनको किसी के सामने आजिज न कर, वास्ते में खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आज हम आप साहब से खुश हैं। हमारी ख़ताओं को माफ़ कीजिए, हमारे लफ्ज़ों को माफ़ कीजिए, और आप अपने हाथों से अल्लाह के ख़जाने से हमें अता फरमाइए। या सरकार, हम मजबूर हैं, आजिज़ हैं, इस हुकूमत के दबाव में हैं। या अल्लाह कुफ़ार और मुशरिकीन पर हमले कर रहे हैं, पालने वाले हमें इन तमाम के दुश्मनी से हमें बचा कर रखें, और हमारे से जो भी दुश्मनी करते हैं उन दुश्मनी उनके ऊपर लौटा दीजिए, उन्हीं पर लौटा दीजिए। पालने वाले हमें अमन और सलामती अता फरमाइए, ताकि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, अल्लाह के फ़राइज़ पर अमल करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और दीन के तमाम कामों में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और काम करें। और जितना भी हम आप औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से हम कर रहे हैं, इन तमाम में हमें बरकत अता फरमा, तेरे गैब के ख़जाने से अता फरमा। या अल्लाह, इस घर में गैब के ख़जाने से बरकत अता फरमा। यहाँ जितने भी छुपे दुश्मन हैं उन तमाम दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा और उनको बाहर निकाल। जिन्नात हो जो नज़र आते हैं, जो नज़र नहीं आते हैं, इन तमाम शयातीन से हमारी हिफाजत फरमा। जितने भी बंदे हैं, जितने भी तेरे चाहने वाले हैं, इन तमाम को किसी के सामने आजिज़ और मजबूर न कर। पालने वाले इनके हाथों पर सब इनका हाथ सबके हाथों पर ऊपर रख दे। पालने वाले इनको देने वालों में शुमार कर ले, लेने वालों से बचा ले। पालने वाले हम तेरे नबी के चाहने वाले हैं,
تیرے پنجتن پاک کے چاہنے والے ہیں یا اللہ ہم اہل بد کے اہل بیت کے عاشق ہیں آنے والے ان تمام کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہم کھڑے ہی تیرے در پہ یا اللہ مانگے چاہے نوازے یا نہ نوازے پڑے ہیں تیرے ہم دروازے ہم تیرے دروازے سے چھوڑ کر تیری دہلیز سے چھوڑ کر ہمارے لیے کوئی دہلیز نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے پالنے والے ہمیں نہ دھتکار اور ہماری تمام ضرورتوں کو ہمارے تمام مسائل کو ہماری تمام مشکلات کو واسطے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب خواب قوسین محبوب رب المشرق والمغرب مغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم اغسل ثواب ما خران من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی عنہم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى روح مولا وکیلی شاہ حضرت وکیل شاہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ اللہم اجعل له اللہم اجعل قبره روضة من ریاض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النیران
یا اللہ ان کو جنت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مقام عطا فرما اور ہمیشہ آپ کے دیدار سے مشرف فرما، یا اللہ ان کے طفیل سے ان کے خاندان، ان کے اولاد، ان کے بچوں تمام کے گھروں پہ برکت نازل فرما، مصیبتوں سے انہیں نجات عطا فرما، دشمنوں سے خرچ پریشانیوں سے انہیں امن سلامتی عطا فرما، پالنے والے ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تیرے خیر کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو جانتا ہے مولا، ہمارے آنے والی مشکلات کو تو جانتا ہے، آنے سے پہلے انہیں روک دے، پالنے والے واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم سخر لی اعدائی کما سخرت الریح لسلیمان ابن داود علیہ السلام، وَلَيِّنْهُمْ كَمَا لَيِّنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاود علیہ السلام، وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام، وَخَهِّرْهُمْ كَمَا خَهَّرْتَ أَبَا جَهْلٍ محمد علیہ السلام، بحق کاف ہا یا عین صاد وبحق ہا میم عین سین قاف، صم بکم عمی فهم لا یرجعون، صم بکم عمی فهم لا یعقلون، صم بکم عمی فهم لا یبصرون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فسیکفکهم اللہ وهو السمیع العلیم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ